تو کل مینلی ہماری بات تھی کہ آپ کا جو رول ایز اے لیڈر کیا ہے، اور ایک لیڈر جو ہے وہ جسٹ ایکٹ کرتا ہے لائک اے کوچ، جس طرح ہر ٹیم کا ایک کوچ ہوتا ہے، چاہے ایک پلیئر کتنا بھی ایکسپرٹ ہو لیکن وہ پھر بھی اس کے پاس ایک کوچ ہوتا ہے، اور کوچ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے تمام اسٹیپس کے اوپر، اور پہلے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کی ویکنیسز کیا ہیں، اسٹرینتھس کیا ہیں، تھریٹس کیا ہیں، اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور اس کے مطابق ان کی ٹریننگ کرتا ہے، کوچنگ کرتا ہے، اور ہر روز کوشش کرتا ہے کہ اس کی ٹیم پہلے سے بہتر پرفارم کرے، یا جس بندے کو وہ کوچ کر رہے ہیں وہ پہلے سے اس کا اسکل بہتر ہو۔ تو ہمارا رول ایز اے پرسن، ایز اے مینیجر، ایز اے لیڈر is only one, is to develop and train our team، اور الٹیمیٹ جو اسپارک ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا بندہ پرفارم کر رہا ہے ان فرنٹ آف دی، ہمارے کیس میں ڈاکٹر، اور اینی کیس فارماسسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی بندہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت اس کی کنورسیشن کی کوالٹی کیا ہے۔ اگر اس کو ہم امپروو نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا رول جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہتا، کیونکہ ایک شخص ہر وقت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، اور اس کو پہنچانے کے لیے اس کی ٹیم ہوتی ہے، اور اگر ٹیم جو ہے اس لیول پہ پرفارم نہیں کر رہی کہ جب آپ ریپرزینٹیٹیو تھے تو آپ پرفارم کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ سکسیس کا لیول نہیں آ سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ آج ہمارا جو گفتگو تھوڑی ڈفرینٹ ہے، میں تھوڑا ریپیٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ یہ آج میں اپلوڈ کر دیں گے، آپ ضرور سنیے گا اس کل کی گفتگو کو، دیٹ ول بینیفٹ یو آل۔ اور رضوان بیٹھے، اچھا چلے، وہ کل کا جو ہے نا لیکچر، اسے آپ کہیے گا کہ میں نے اس کو ریٹرن سارا دے دیا ہے، وہ ایک بنا کے ریٹرن بھی بھیج دے، اس کے کویشچن آنسر بھی بھیج دے، تو آپ چاہے دیکھ کے فل کریں، لیکن ایک دفعہ پریکٹس کریں گے تو ان کو یاد رہے گا کیا پڑھا تھا۔ تو جب بھی کوئی چیز آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر آپ یہ 3 سٹیپ کر لیں تو آپ کو کبھی وہ نہیں بھولے گا کہ پہلی بات جو آپ نے سنی ہے اس کو اپنے ورڈز میں لکھ لیں، اور جو اپنے ورڈز میں آپ نے لکھا ہے اس کو ایک دفعہ پروڈیوس کر دیں اپنی ٹیم کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نالج آپ کا کافی دیر تک آپ کے پاس ریٹین رہے گا۔ اگر ہم صرف سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد وہ آپ کا نالج ڈرین کر جاتا ہے، اور اگر اس کو ہم بار بار نہیں پڑھتے یا ریٹین نہیں رکھتے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تھوڑی سی بات ہماری ڈفرینٹ ہے، لائک اس پارٹ کی ہے جو آپ کرتے رہے ہیں، آپ کی ٹیم کر رہی ہے، اور اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک سکسیزفل ٹیم کین ناٹ بی میک بائی ایکسیڈنٹ۔ ایک سکسیزفل ٹیم جو ہے وہ آپ کے کنٹینیوس ایفرٹ سے، کنٹینیوس ٹریننگ سے ہی بن سکتی ہے، اور سیلز کا پروفیشن جنرلی طور پہ اس کو بہت ایک ڈیفیکلٹ پروفیشن بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ کو خود بھی اور اپنی ٹیم کو یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ دس از ون آف دا بیسٹ پروفیشن دے آر ان۔ اف یو کمپیئر اینی پروفیشن اینڈ یو کین گوگل اٹ، کہ آپ کے سب کانٹیننٹ میں، ایون یو ایس میں، فاسٹسٹ آپ کسی پروفیشن میں ارن کر سکتے ہیں یا گرو کر سکتے ہیں، وہ سیلز کا پروفیشن ہے۔ اور اگر صرف اپنی سوچ کا آپ انداز بدلیں، کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی چیز بیچنے جا رہے ہیں، یا آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں، تو ٹوٹل آپ کی سوچ کا معیار ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اندر ہیں، تو اگر صرف اتنی سوچ کو ہم بدل لیں کہ ہمارا جاب کیا ہے یا ہمارا پرپز کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پروڈکٹ جس سے کسی مریض کو آرام آ سکتا ہے، وہ ہم ڈاکٹر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں یا فارماسسٹ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور وہ انہیں ایڈوائز کریں گے، تو اس سے کوئی ایک شخص ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی اینٹی بایوٹک سے، کسی وائٹامن سے، ایک ڈیزیز کنڈیشن سے ایک شخص باہر آ سکتا ہے۔ تو اگر ان دونوں سوچ کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی سوچ کا محور ہی بدل جائے گا، اور آپ کو اپنا پروفیشن جو ہے وہ اچھا لگے گا۔ تو اس کی ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ایک پروفیشن صرف اڈاپٹ کیا، اینڈ دیٹ واز دا پروفیشن آف سیلنگ۔
तो ये तो एक मसनून प्रोफेशन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दैट योर प्रोफेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। और दूसरी बात ये है कि हर प्रोफेशन ही सेल्स का प्रोफेशन। दुनिया में दो चीज़ें बेचते हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं। तो वट एवर द प्रोफेशन, आदर यू आर डूइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सेल्स के प्रोफेशन में रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैनेजर हैं, वट एवर you are selling one of the two things. Either you are selling a product, either you are selling a service. So everybody by default is in the profession of selling. So how better you perform depends on certain factors. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी प्रोफेशन में, ख़ास तौर पे सेल्स के प्रोफेशन में, इज़ योर सेल्फ इस्टीम एंड योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज और सेल्फ इस्टीम क्या है कि आप अपने बारे में क्या ख्याल करते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो जो आप खुद के बारे में समझते हैं, आपका सबकॉन्शियस भी आपको वही मैसेज देता है। अगर खुद के बारे में आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं कि आई एम द बेस्ट इन द प्रोफेशन, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप बेस्ट इस प्रोफेशन में हैं। आपको फर्स्ट थिंग इज दैट यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ that you are in the best profession and you are the best professional and you want to become the best professional. और फिर अगली चीज़ ये है कि आपकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, why you are doing this job। एक तो बहुत अच्छा आंसर है कि भी आपने अपने एक्सपेंस को पूरा करना है, लेकिन देयर शुड बी अ हायर पर्पस ऑल्सो। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जब आप ये समझेंगे कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी बीमार को एक दवा फराहम करने का जरिया बन रहे हैं, तो यू गेट अ हायर पर्पस एंड देन यू थिंक दैट व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, तो आपके तमाम लोग जो आपसे रिलेटेड हैं, दे अप्रिशिएट यू, दे आर प्राउड ऑफ यू। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपको एक सक्सेसफुल बंदे के तौर पे जाने, या कि आपको एक फेलियर के तौर पे जाने? तो व्हेन यू हैव दिस पर्पस, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन जो है ये हमेशा इंसान के अंदर से आती है, और हर चीज़ आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सोच एक कॉन्शियस एफर्ट है, इट इज़ नॉट दैट समथिंग हैज़ टू हैपन टू थिंक यू पॉजिटिव। अभी आप बैठे हुए हैं एंड यू जस्ट कंसंट्रेट and think positive about anything, especially yourself, तो आप देखेंगे आपकी सोच का मयार और बिल्कुल आपका बदल जाएगा। तो किसी भी प्रोफेशन में, और ख़ास तौर पे सेल्स के प्रोफेशन में, आपको रीजंस चाहिए, एंड राइट डाउन दैट रीजंस ऑन अ पेपर एंड राइट डाउन व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाई यू आर डूइंग दिस जॉब, और आपकी ज़िंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट एवर इट इज़। अगर आपका गोल डिफाइन नहीं है और आप हर रोज़ उसको रिव्यू नहीं करते, तो आप उसकी जानिब नहीं बढ़ सकते। तो जब आप एक गोल डिफाइन करेंगे, व्हाट एवर इट इज़, ये गोल आपका प्रोफेशनल हो सकता है, ये गोल आपका फाइनेंशियल हो सकता है, ये गोल आपका पर्सनल हो सकता है, ये गोल आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है, व्हाट एवर इट इज़, अनलेस यू कॉन्शियसली डिसाइड कि मुझे अपने प्रोफेशन में टॉप 5 में आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 1 में आना है, ये गोल हो सकता है, आपका हेल्थ गोल हो सकता है, आपका रिलेशनशिप गोल हो सकता है। तो व्हेन वी राइट डाउन, ये देखा गया एक स्टडी के अंदर कि अगर कोई शख्स जो सोचता है और जो चाहता है उसको एक पेपर पे लिख लेता है और जस्ट हर रोज उस पेपर को देखता है, तो देयर आर 200% चांसेस दैट ही अचीव्स दैट गोल मोर ऑफ्टन। द रीजन इज कि एक आपका कॉन्शियस माइंड है जो अभी हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, और एक सुपर कॉन्शियस माइंड है जो कि नेचर है। व्हेन यू कॉन्स्टेंटली रीअफर्म एंड थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो कुदरत यानी हमारे यकीन है खुदा की ज़ात आपके लिए ऐसे एनवायरनमेंट बनाती है कि वो चीज़ें हैपन होना शुरू हो जाती हैं। सो अ सेंस ऑफ पर्पस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी थोड़ी सी हम बात ये करेंगे कि जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ
एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपीयर होते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट के आगे, और आपको जहन में ये है कि यू आर गोइंग टू हेल्प हिम टू ट्रीट बेटर वे द पेशेंट, और उसके लिए आपके पास सोल्यूशन है। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप एक डॉक्टर के पास गए, हर कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाके तो आपने कुछ नहीं बताया और उन्होंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया, तो आपको उसके बारे में, उस डॉक्टर के बारे में क्या ख्याल होगा? तो इतना अच्छा ख्याल नहीं होगा। तो अभी देखें कि वो कोई पीर साहब तो हो सकता है, लेकिन वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हो सकता। तो दिस इज सच एन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ आवर प्रोफेशन। अगर we think ourselves as a sales consultant and we go to meet somebody और हम उससे कोई सवाल नहीं पूछते और जो कुछ हमें याद है हमने उसको बता दिया, तो we are just like that doctor जिसने आपसे ही नहीं कि आप तो आज कितने स्मार्ट लग रहे हैं। तो that should be based on the reality and facts। अगर एक बंदे ने टाई अच्छी पहनी तो उसको आप कह सकते हैं कि इट्स लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू। एक अगर एनवायरनमेंट क्लिनिक का अच्छा है उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इट शुड बी लॉजिकल और रियलिटी बेस्ड बट लिटिल ऑगमेंटेड, और चॉइस ऑफ वर्ड्स आपका बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट थिंग, एंड देन यू स्टार्ट विद एवरी स्टेटमेंट जिसमें कि आपके प्रोडक्ट का एक फीचर है, एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है और एक क्वेश्चन है। तो आप जब एज ए मैनेजर बैठे यहाँ पर, आप अपनी टीम के साथ बैठ के ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट मैनेजर्स बैठे हैं वो अपनी टीम के लिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर डेवलप कर सकते हैं। और समटाइम ये होता है कि आप जो अगला पार्ट है कि आप ऑब्जेक्शंस को पहले ही प्री कंसीव करते हैं और उसको अपनी प्रेजेंटेशन में बिल्ड कर लेते हैं। कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं? देखिए, 4 whys are always in a customer's mind कि why should I buy, या मैं ये क्यों प्रिस्क्राइब करूं, और अभी क्यों प्रिस्क्राइब करूं, और इसी का प्रोडक्ट क्यों प्रिस्क्राइब करूं, और इसी की कंपनी का क्यों करूं। तो when you already have all these whys in your mind and you build in your presentation, तो आपका कोई ऑब्जेक्शन आने की उम्मीद नहीं होती। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी सेल्स कॉल का है, और वो है कि हम डरते हैं क्वेश्चन करने से। हम डरते हैं कि देखें, जब आप एक कस्टमर को अप्रोच आपने किया, क्या उसको नहीं पता आप यहाँ क्यों आए? क्या आपको नहीं पता आप वहाँ क्यों गए? तो जब दोनों को एक पर्पस क्लियर है और अगर आपने वो पर्पस फुलफिल ही नहीं किया, देखिए एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि आप किसी के बारे में जाने से पहले थोड़ा अगर रिसर्च करें, भले ही आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आजकल हर चीज जो दुनिया में जो बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो इंटरनेट पर मौजूद है। किसी हॉस्पिटल के बारे में, किसी क्लिनिक के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन। जब आपकी रिसर्च उसके बारे में स्ट्रॉन्ग है, एंड व्हेन यू बिल्ड इन योर कन्वर्सेशन, so you will see that person appreciates your efforts. So my talk today is that you people are the people who are very successful as the representatives. That's why you've been promoted to this job. तो अगर आप अपनी टीम को इन बेसिस पर आप नहीं ट्रेन करते, नहीं बिल्ड करते, तो आपकी सक्सेस अचीव नहीं हो सकती। माशाल्लाह यू ऑल आर सक्सेसफुल, बट देयर इज नेवर एंडिंग थिंग। हमेशा हमें आगे बढ़ने का सोचना है। आप अपनी टीम का नॉलेज एंड स्किल लेवल जितना इम्प्रूव करते जाएंगे, आपका काम उतना आसान होता जाएगा। आपको एक दिन भी सेल्स के पीछे, टारगेट के पीछे भागना नहीं पड़ेगा अगर आप सोचें कि आपकी टीम वैसे ही काम करे जैसे आप काम कर रहे थे। तो जैसे आप काम कर रहे थे वैसे काम करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए उनका सेल्फ इमेज चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए और स्किल चाहिए। एंड द मोस्ट थिंग यू वांट टू प्रैक्टिस देम कि आपका कोई 2 जुमले ऐसे ना जिसमें कि आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो एक कंसल्टेंट जो होता है वो जब तक सवाल नहीं करता वो डायग्नोज नहीं कर सकता, और अगर अच्छा सवाल नहीं करता तो अच्छा डायग्नोज नहीं कर सकता, और जब अच्छा डायग्नोज करेगा तो अच्छा प्रिस्क्रिप्शन देगा।
दूसरी गल हमने थोड़ी सी बात की थी कि देखें कि पोजीशन पावर इज अ नो पावर इन दिस वर्ल्ड. You as a managers handling your teams, you don't have to be a scary boss. You have to be a friendly boss. A friendly boss का मतलब ये नहीं है कि आप असूल पे कॉम्प्रोमाइज करें. अगर कोई शख्स अपनी टीम मेंबर की वाज़ेह गलती को वो सरफे नज़र करता है तो वो असल में अपने करियर को बैक गियर लगा रहा है. दिस इज अ डायकोटमी ऑफ लीडरशिप. हमने कल डिस्कस किया कि आपको बहुत ही हायरार्किकल नहीं होना है, आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं होना है, आपका वर्ड हरफ आखिर नहीं होना चाहिए, आपकी तमाम डिसीजन मेकिंग इंक्लूसिव ऑफ टीम होनी चाहिए, लेकिन बेस्ड ऑन द राइटियसनेस होनी चाहिए. ये सारी टीम मिलकर अगर ये कहती है कि हमें काम कम करना चाहिए तो आप इसको अप्रूव नहीं कर सकते. सारी टीम मिलकर किसी गलत चीज़ को अप्रूव करती है तो आप नहीं कर सकते. तो whenever you make a inclusive decision making, भले आपकी पर्सनल डिसएग्रीमेंट भी है उस बात से, लेकिन फिर उसको आपने ऑन करना है, उसको आगे लेके चलना है. एक स्टडी हुई अमेरिका में कि देखा गया कि जब किसी भी कोर्ट में एक केस पेश होता है और उसके बाद ज्यूरी या जज उसको फाइनल सेंटेंस देता है, तो पता चला कि 65% ऑफ केसेस में जब कोई जज या ज्यूरी फैसला कर रही थी एंड दे हैव द फुल स्टोमक, तो 65% ऑफ केसेस में उन्होंने रिलीफ दिया. Full stomach, 65% relief. And when they were hungry, so their ratio was less than 30%. So one of the very good thing is, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जहाँ पर ये पॉसिबल हो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि आप अपने कस्टमर के साथ, डॉक्टर के साथ जब आइस ब्रेक करते हैं, just have a tea and some snacks and then you can have a conversation. The whole scene of the conversation changes. फिर आपको इतनी देर से काम करते हो गई है, तमाम डॉक्टर्स को आप जानते हैं, तमाम कस्टमर्स को आप जानते हैं, तो whenever you go you bring something that you can eat together or you can eat and you can talk over a cup of coffee or some kind of nuts or something, cake or anything or pizza even. This is a very good icebreaker whenever, especially you are, तो ये हम करते भी हैं कि जब हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो केक कटिंग सेरेमनीज करते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ इट कि इससे आपको एक आइस ब्रेकिंग में बहुत मदद मिल जाती है. फिर जब सम टाइम ये होता है कि जब आप सही सवाल नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि ये मुझे एक्चुअली कहाँ पे अपनी बात को पिच करना है. तो उसमें एक एग्जांपल मैंने पढ़ी कि एक दो लोग थे, वो बहन भाई आपस में ऑरेंज पे दे वर जस्ट फाइटिंग, दे बोथ वांटेड टू हैव द ऑरेंज. लेकिन जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि जो सिस्टर थी उसको ऑरेंज का पील चाहिए था फॉर मेकिंग ए रेसिपी, और जो भाई था उसको ऑरेंज चाहिए था फॉर मेकिंग ए जूस. So it is just a clarifying question. If you ask them the right question, you get the answer and the problem is solved. Last time हमने एक बात की थी कि as a manager there are some powerful words जो कि आपको अपनी everyday conversation में use करने हैं. किसी को याद है कि नहीं? आप लोग थे उस लेक्चर में? कोई एक वर्ड किसी को याद हो? थैंक यू. तो आज हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ये वर्ड्स आप लिखें, याद करें, और जब भी आप अपनी टीम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, these are very powerful words to use. और एक और मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी, वो आपकी टीम को याद है? एक हमने एक डिटेलिंग पैटर्न एक बनाया था यूजिंग फ्यू वर्ड्स. जी जी, वो याद है? हमने प्रैक्टिस भी की. कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है अभी? अच्छा, वो आपने ये करना है कि अभी इन सबको व्हाट्सएप करनी है अपनी वो डिटेलिंग, और ताहिर साहब जो सुनाएगा ना आज उसको छुट्टी मिल जाएगी. ठीक, ये आज का ये फाइनल, क्योंकि वैसे आपने याद नहीं करनी, तो आज जो वो सुनाएगा
तो वो फिर घर जाएगा वरना इधर ही बनेगा. तो let's start with those powerful words again. तो whenever you people are interacting with your team, पहले तो आप इनको memorize करें. Once you get through this, तो आप इसको उर्दू में, अंग्रेजी में, पश्तो में, whatever the language you are comfortable with, लेकिन इन वर्ड्स को आप हमेशा अपनी कन्वर्सेशन में रखें. यू विल सी वेरी मैजिकल रिजल्ट्स. द फर्स्ट वेरी पावरफुल वर्ड इज स्ट्रैटेजी. यार ये हमारा टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो यू विल गेट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम योर टीम. द सेकंड पावरफul word is analyze. Let's analyze what is working, what is not working. Let's sit together and analyze over last month's, last week's, last year's performance. And third word is expectation. My expectation from you is this. This is what the company expects from us. This is we all are expected to do. So these are third very powerful word you must use every day in your conversation. Opportunity. This is a great opportunity. If we work together, this new product is a great opportunity. This new customer is a great opportunity. This new beginning is a great opportunity. And benchmark. यार ये तो हमारी एक benchmark performance है, ये तो minimum हमें करना ही है. What should be our next benchmark should be. And then the other very powerful word is holistic. देखिए holistic means जैसे अभी बहुत सारी आप लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई कि whenever you travel, you go any area, so you have a holistic approach for whole of your company, for whole of your portfolio. तो holistic is wholesome. आपको एक चीज को एक बड़े एंगल से देखना है. तो आपको जब टीम के साथ कम्युनिकेट करना है तो टीम को बताना है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए टू लुक फॉर एवरी प्रोडक्ट, एवरी ब्रांड, एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी एरिया, व्हाटएवर कम्स, हैव होलिस्टिक अप्रोच. कि अगर एक हॉस्पिटल में गए, एक डॉक्टर लेकर आए, व्हाई नॉट द अदर वार्ड, व्हाई नॉट द अदर डॉक्टर्स. इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड. कोलैबोरेट. Collaborate is another very powerful word for a leader or for a manager to use. And then values, the principles or standard of behavior जो कि हमें कम्युनिकेट करना है अपनी टीम से कि हमारी वैल्यूज़ क्या है, कि हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है. हमारी वैल्यू क्या है कि हमें एक्सीलेंस क्रिएट करनी है. हमारी वैल्यू क्या है कि हमें हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए, हमारी इंटेग्रिटी होनी चाहिए. हमारी वैल्यू क्या है कि हमें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है. हमारी वैल्यू क्या है, हमें कस्टमर सर्विस करनी है. हमारी वैल्यू क्या है कि वी हैव टू बिकम अ गुड प्रोफेशनल. व्हाट इज अवर वैल्यूज इन अ कंपनी, जिसको आप प्रमोट करेंगे तो प्रमोट होंगी. कि वी हैव टू लुक वेरी रीजनेबल. आप देखेंगे कोई भी बंदा आपसे इंटरेक्ट करता है, इफ ही और शी इज वेल ड्रेस्ड, उसके बाल भी अपने सवारे हुए हैं, आपने अगर दाढ़ी भी रखी है तो आपने थोड़ा उसको ट्रिम किया हुआ है, एंड यू आर नॉट लुकिंग शेबी, तो हाउ यू लुक बेटर, कन्वर्सेट विद दैट पर्सन. या एक बंदा है जिसका बैग भी गंदा है, पाँव भी गंदे हैं और ऊपर जैकेट के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है. तो व्हेन यू प्रमोट दीज वैल्यूज इन योर टीम एंड यूज दिस वर्ड, जब आप वर्ड यूज करेंगे हमारी वैल्यूज क्या है, तो उसको पता होना चाहिए फिंगर टिप पे ये हमारी वैल्यूज हैं, कि हमें इंटेग्रिटी ऊपर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. उसको पता होना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट के ऊपर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. कि व्हेन वी टॉक विद आवर सीनियर्स, विद आवर जूनियर्स, विद आवर कलीग्स, नोबडी इज सुपीरियर अगर वो आपका जूनियर है. तो ये कल भी हमने बात की थी कि कोई भी शख्स भले आपको चाय पिला रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, या बाहर एक बंदा सफाई कर रहा है, एज ए पर्सन वी ऑल आर इक्वल. हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है. इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो एक शख्स की जो पर्सनल रिस्पेक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन डिफर with his behavior, with his performance, but not as a person. This is our value. Maximize. Maximize is also a very powerful word to use. How we can maximize our efforts, how we can maximize our knowledge, how we can maximize our sales, how we can maximize our share, how we can maximize our approach, our positivity towards certain task. It's a very important word. ये अगली दफा सुनने में नहीं याद रखना, ठीक है. फीडबैक.
What is your feedback of this customer? What is your feedback of the area? What is your feedback of the meeting? What is your feedback meeting with your team? What is your feedback? The feedback is a very powerful word that you must use while conversating with your team members. Reflect. Yeah, your knowledge, your skill, and your abilities must reflect in your statement. The kind of person you are is not reflecting in your performance. This is the reflection of what you did last month. So this is a very powerful word to be used. Implement. This is a strategy, it's an excellent strategy given by our product manager, by our marketing manager, by our sales manager, by our HOS, our chief executive. But we have to implement it. Like the supplementation was an excellent thing, but it was poorly implemented. So this is a very powerful word to use. And then proactive. You have to be proactive. यार इसको हम अभी से देखेंगे the end of the month में हमें ये नहीं देखना पड़ेगा we miss that. So you have to have a proactive approach for your target, for your goals, for your achievement, for your knowledge. So you can apply it at multiple levels, this word proactive, and we have to be proactive. बजाय इसके कि काम हो जाए और उसमें फिर हम बैठ के रोएं, बेहतर है कि आज उसको देखें कि proactively आज के एक्शन लेंगे जिसका रिजल्ट by the end of the month or quarter or year आएगा. Then change. What positive change you can bring? This should change. The change is also a very powerful word and all managers must use. Delegate. Delegate तो एक फंक्शन भी बड़ा अहम है. कहते हैं हर वो काम जो कि आपका सबऑर्डिनेट कर सकता है वो आपको डेलीगेट करना चाहिए, और हर वो काम वो जो नहीं कर सकता वो आपको करना चाहिए. देखिए एक बंदा ट्रेन नहीं कर सकता टीम को, तो जाहिर बात है कि ये आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते. बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप डेलीगेट कर सकते हैं. जैसे आपने कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, आपने कोई एनालिसिस करना है, यू कैन डेलीगेट, बजाय इसके आप घंटों उस पर खुद टाइम लगाएं. तो whatever your subordinate can do, you must delegate, and this word delegate should be your routine vocabulary word as a manager, as a leader. Optimize. Optimize is a very powerful word. The best use of your resources is the optimization. कि आपकी जो ability है, आपका time है, आपका human resource है, आपका financial resource है, आपका samples का resource है, आपका giveaways का resource है, whatever the resources, how we can optimize to get the maximum result. So optimize should be a very common word be used by you. Focus. Focus is the answer to all of the issues I told. अब कहते हैं जिस चीज पे आप फोकस करें वो बेहतर हो जाएगी, जिस चीज पे आप फोकस नहीं करेंगे वो खराब होती जाएगी. तो फोकस शुड बी वेरी फ्रीक्वेंट वर्ड यूज्ड बाय यू पीपल. एंड दो वर्ड है जो बहुत कम यूज होते हैं, उनको आप लोगों को, हम लोगों को सबको बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए. वन इज वेल डन. Whenever there is a good performance, ये well done. जैसे आपने इस महीने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तो हम कहते हैं well done. Clap for everybody. And last but not the least, thank you. होता ये है कि भाई generally this is happening like everywhere I see. We are very generous in criticism and we are very cautious in appreciation. जबकि इसका रिवर्स होना है. We have to be very generous in appreciation. हमारे जो ना हल्क से आवाज नहीं निकलती किसी को अप्रिशिएट करते हुए, या कि हमें नजर आ रहा होता है कि एक बंदा अच्छा कर रहा है. It takes nothing, I tell you, it takes nothing to appreciate someone. किसी अच्छी बात को, किसी ने एक अच्छे कपड़े पहने, किसी ने आपके साथ अच्छी बात की है, किसी ने कोई छोटी सी बात बेहतर कर दी है, तो must say appreciate and say well done and thank you. इसको अपनी vocabulary का frequent part बनाएं. आप देखेंगे these are the magical words, they will change the whole scene of your team. तो आज की बात को थोड़ा मैं summarize करूँगा just in 2 minutes. कि पहली बात ये है कि rate yourself and your profession the highest in your mind. सारी बात आपकी सोच और आपके जहन से शुरू होती है. You are in the best profession of the world. इससे अच्छा दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है.
this is the fastest route to any progress you want to make in your life. اپنی اور اپنی ٹیم کی سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم اور سیلف امیج کو ہمیشہ پازیٹیو کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشنز دیں اور بی ویری پریپیئرڈ فار واٹ ایور یو آر گونا ڈو in your life, in your profession and your team. Train your team well, tell them what are the components of a sales call and how they can improve it. Practice the opening sentences, practice the presentations, fab and questions, and then you build the objections within your presentation. And probing is your key instrument, questioning is your key instrument. Future is for the askers. If you ask a right question, you will get the right answer.